लोगों का पैसा मैनेज करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके पास लोग के पैसा डालते हैं, तो कुछ लोग अगर इन्वेस्ट करने वाले हैं तो मुझे बताइएगा, हमारे पास स्टोरी रहती है, आई एम द डायरेक्टर फॉर द। तो मैंने बोला उनको कि अगर कंटेंट अच्छा रहेगा तो आई विल इन्वेस्ट फर्स्ट, एंड दैट्स हैपन। बिना माइक के भी चलेगा। हेलो। हाँ। बंद हो जाएगा, चालू करो यार जल्दी। Anyway, thank you so much for this answer. And ma'am, what made you also support your husband to this venture? आणि सॉरी, I got थोडा मराठी आ जाता है इस बीच में, बट नाही, पण आपलं रिजनल सगळेच आहेत ना मिक्स, त्यामुळे. बट अदरवाइज आई वॉन्ट टू नो दैट व्हाट मेड यू सपोर्ट योर हस्बैंड इनटू दिस वेंचर, एंड व्हाट डू यू थिंक व्हेन आपने जब ये स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ी, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टुवर्ड्स दिस एंटायर प्रोजेक्ट दैट यू हैव एंड एज अ डेब्यूटेंट प्रोड्यूसर? कंधे को कंधा लगाना चाहिए मिस्टर के, है ना। तो स्टोरी जब सुनाई मुझे, तो इसमें अच्छा क्या लगा, तो करिश्मा का काम, मोहित, अमित, इनका काम अच्छा लगा, स्टोरी बहुत अच्छी लगी। और सोचा कि पहले तो ना चल रहा था, बाद में लगा स्टोरी लगा तो ठीक है, करना चाहिए, थोड़ी रिस्क लेनी चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। Yes, rightly said. And now I would like to invite the mind and the man behind the vision, behind the storytelling, behind this incredible direction of the Rabbit House. May I please have Mr. Vaibhav Kulkarni on stage? Thank you. A very, very, very big honor that he has been bestowed upon with since just day before yesterday. I would like everybody to please welcome me and honor and applauding Mr. Vaibhav for winning the Filmfare OTT Award for his short movie Deshkari. Please, may we have a huge round of applause for Mr. Vaibhav. Thank you so much. This is a huge, huge thing. तो आप सोच सकते हो जो Filmfare, of course, who's been bestowed upon with this award. The kind of movie that's gonna come up to, you just guys have to just wait and watch for 20th December, right? The release date of Rabbit House. So, Vaibhav sir, I wanted to ask you that you're into this industry since a pretty long time, and you have produced short movies, made short movies, and all of that. What made you select the movie and a concept like Rabbit House to actually, go up to Himachal, and also the movie, the Rabbit House is an actual place where they have shot. So, may please थोड़ा silent रख देंगे क्या? So, I really wanted to know कि why did you select the movie Rabbit House, and firstly, why is the name The Rabbit House, and number two, why what made you come up with such thrill and mystery? पहले तो जैसे मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो बहुत सारी स्टोरीज दिमाग में जहन में चलती रहती है। तो किसी ने रैबिट हाउस के बारे में बताया कि ये हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी ऐसी जगह है, थोड़ा यूनिक प्लेस है, यूनिक घर है। तो वो सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक स्टोरी आकार लेने लगी, ठीक है। तो बाद में जब रेकी के लिए हम वहाँ गए तो देखा कि कितना यूनिक वो घर है। एक्चुअल हिमाचल प्रदेश में एक अनटच्ड जगह पर एक प्लेस है, घर है, बहुत ही 120 साल पुराना घर है। With the team, like our director Vaibhav sir started from a decade ago. So it was, I remember precisely 2013 and 14 we were going to do something together, and that was so fun. And from then we had that connection built. So whatever he has, I know I'm doing it. I've been lucky to work with Padmanabh as well. So we had a connection, and this team along with the cinematographer are my favorites. So there was no point of saying no. And the story, obviously, you said not talking about the character, but in 2022, yes, 2022 in January, I read the story first. There was no dialogues, there was no climax. It was just a feedback that the sir asked for. And I had no idea that this is the film I'm going to be a part of. But I said, I think at that time, that this girl, Komal, she feels like me. So then there was no looking back. I'm here. Thank you.
Well, when Vaibhav narrated the story to me first time, we have been planning some other film after COVID, and it was based on a lockdown. Then वो बात बनी नहीं. Then he came with this story, and then initially it was like हमें लगा मराठी में बनाया या हिंदी में, but this subject was so good with so many shades in that. So we thought of exploring this concept beyond. मिक्स करे. एक होता है कि एक पैरेलल इंडी सिनेमा होता है, एक होता है टिपिकल कमर्शियल. सो वी थॉट ऑफ ब्लेंडिंग दैट बोथ द जॉनर्स. सो दैट्स व्हाई यू सी कंटेंट बेस्ड लगेगा भी, बट कमर्शियल एंगल भी है उसमें, गाने भी हैं, एंड देन पिक्चराइजेशंस जो हुए हैं, जिस तरह से बात बनी है. सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली ओवरऑल. बहुत मज़ा आया काम करने में. एंड देन ओवरऑल क्रू जो था हमारा, इट वाज लाइक फैमिली ओनली. देयर वाज नो तामझाम, नो लाइक दैट जो होता है शूट्स पे. सो वी वर पैशनेटली वर्किंग फॉर दिस फिल्म. जो 25 दिन थे हम हिमाचल में. सो वी वर जस्ट फोकस ऑन डिलीवरिंग द होल कॉन्सेप्ट इन प्रॉपर वे. बाकी वैभव और मैं बहुत सालों से वी वर इन टच कि कुछ अलग बनाते हैं. देन ही हैज़ वेरी डिफरेंट विजन. हिज थॉट प्रोसेस इज़ वेरी डिफरेंट, नॉट टिपिकल बॉलीवुडिश. तो देन इवन आई ट्राई माई सेल्फ कि कुछ ऐसे रोल्स मिलते जाए या करते जाओ जो डिफरेंट हो, मेरी लास्ट फिल्म से अलग हो. तो आई वॉज वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. आई थिंक. Please. ये दोनों ने सब कुछ बोल दिया है. सो मैं बोलने में थोड़ा ऐसा वैसा हूँ, तो मैं गाना गाऊंगा आपके लिए. इसी फिल्म का एक गाना गाता हूँ मैं. एक्चुअली मैं म्यूज़िक कंपोजर ऑफ दिस फिल्म, और मामा ने, वैभव जी ने मुझे एक दिन आके बोला कि फिल्म में काम करोगे क्या. वाई नॉट. सो ऐसे मैं एक्टर बना हूँ. No, but sorry, before you begin with your music, with your singing, a huge round of applause, everybody, for the music that you've composed. Genuinely, it's incredible. The kind of tabla beats, the kind of all the music that you've composed. It's just to the heart and very, very. It just touches the strings of the heart. So thank you so much for this music. थैंक यू सो मच. सो ये एक हिमाचली फोक सॉन्ग है, अभी जो आपने सुना. तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी, तेरी बंगारू जो बजदी, बिंदी यारी गल तेरी दूरा तक कीती मैं, अधरारी जगह तुझो कालजू चो दिती मैं, दिल्ला जो हाँ पता मुझे तू की हजती मैं, जुआ जो हाँ पता मुझे तू की हजती मैं, ओ तुध बाज जीना मेरा जी हाँ भादरों रनेरा. ये हॉरर फिल्म नहीं, ये सस्पेंस थ्रिलर बोल सकते हैं. और बहुत सारे एलिमेंट्स है, लेकिन हॉरर फिल्म नहीं बोल सकते. थोड़ा एक छोटा सा एलिमेंट है हॉरर, लेकिन हॉरर फिल्म नहीं है ये. वैभव जी, फिल्म का ट्रेलर देखा हमने, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही खूब रहा. लेकिन एक चीज़ नोटिस करने की कि इस तरह की फिल्मों को अवार्ड्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन कमर्शियल सक्सेस थोड़ा सा मुश्किल लगता है. तो कमर्शियल सक्सेस को किस तरह से देखते हैं आप? ये एक फॉर्मूला बताया जाता है सालों से कि चलो आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म. मैं ऐसा ज़्यादा इस पर बिलीव नहीं करता. ठीक है, थोड़ा बहुत एक इंडी फिल्म बोल सकते हैं, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा ऑडियंस है जिनको ये फिल्में अच्छी लगती है, और उनके लिए ज़्यादा फिल्में बनती नहीं है, ऐसा मेरा कहना है. तो मेरे हिसाब से ये कमर्शियली बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म है, और जो मास ऑडियंस है उनके लिए भी बहुत सारा कंटेंट है इसमें. जो मतलब ऐसा नहीं कि आर्ट फिल्म है तो ऊपर से जाएगी, किसी को समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने रफ कट कुछ लोगों को दिखाई थी, जो एक सामान्य लोग हैं जो कभी थिएटर में जाकर फिल्में देखते भी नहीं, उनको भी बहुत अच्छी लगी. तब पता चला कि चलो ये अभी कमर्शियल फिल्म भी हो गई है. जैसे आपने कहा कि कमर्शियल फिल्म भी हो गई है, लेकिन कमर्शियल फिल्म को हमेशा से ये देखा गया है कि नोन फेसेस चाहिए,
स्टार्स चाहिए, कहीं कमी है आपकी फिल्म में? नहीं, ये भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि नॉन फेसेस चाहिए। आजकल पिछले कुछ सालों से अगर आपने देखा तो नए फेसेस को लेकर भी फिल्में सक्सेसफुल हुई है। मराठी में ज़्यादा हुई है, हिंदी में शायद कम हो सकती है, लेकिन हुई है अगर आती है। और मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी फिल्म आप भी देख सकते हैं कि नॉन फेसेस नहीं है, लेकिन चली, लोगों को बहुत ही पसंद आई। सर Yes, thank you. एक्टर से सवाल है मेरा, विल स्टार्ट विद अमित जी। अमित खान साहब, आपका भी ऑफ कोर्स वी हैव सीन यू इन रीजनल मूवीज एंड यू हैव डन सो मेनी ग्रेट फिल्म्स। Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, दिस विल बी योर हिंदी काइंड ऑफ अ प्रॉपर डेब्यू काइंड ऑफ अ फिल्म, राइट? Thank you so much. बहुत सारे शेड्स देख रहे थे आपके व्हेन यू नो ट्रेलर में। Yeah. तो सच में कुछ आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? यू वर इन सम डिफरेंट जोन, यू वांटेड टू ब्रिंग दैट थिंग ऑन द स्क्रीन? जब वैभव ने स्क्रिप्ट नरेट की थी तो द कैरेक्टर विच वाज इन इनिशियल ड्राफ्ट, इट वाज लाइक थोड़ा मुझे लगा थोड़ा सॉफ्टवेयर वर्जन है. आई ट्राइड टू ऐड I wanted to enhance this whole film ka script by adding the shade of I added OCD and ADHD traits in my character to make it more engaging, so that the relation जो है husband wife का वो suffocation दिखे. How this is very contemporary subject. It happens nowadays. We there are a lot of people with mental disorder, but we don't know they are going through that. So I studied that thing, obsessive compulsive disorder and ADHD. We didn't show that way कि इसे ये है, but then you can see the traits in that. So that's why the character is a little bit weird, psycho, but वो engaging factor add करने की मेरी कोशिश थी. So which takes story ahead. यू नो हिंदी मूवीज में भी हमने देखा है, जैसे माय वाइफ्स मर्डर एक फिल्म आई थी अनिल कपूर साहब। Yeah. तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो उस जोन में प्रॉपर चले जाते हैं एंड दे ट्राई टू ब्रिंग आउट समथिंग व्हिच पीपल हैव नॉट सीन। तो एज एन एक्टर डिड यू फील दैट कि आपने एक 100% इसके अंदर आया है और यू वांटेड टू गिव आउट मोर यू नो एज एन एक्टर? वो तो हमेशा एक कमी लगती है जब आप शूटिंग करते हो. मतलब इवन उस दिन भी अगर मान लो आप कोई सीन कर लेते हो तो रात को होटल में नींद नहीं आती कि यार ये शायद ऐसे हो सकता था. या शूटिंग होने के बाद भी आई यूज्ड टू कॉल वैभव, यार वो साला उस दिन ऐसे करते तो मज़ा आता. तो या फिर एडिट के वक्त वैभव और मेरी जब बात होती थी तो लगता था कि हमेशा वो आई थिंक 100% कभी कोई एक्टर सेटिस्फाई होता नहीं है. बट आई गिव माई 100%, इतना है. थैंक यू। पद्मनाभ साहब, आपसे सवाल है। You know, I won't be talking about your acting thing, but I'll be speaking about the music thing. You have been associated with Panipat, if I'm not wrong. I was just watching out few things. Correct. Panipat हो गया, एक थी डायन हो गया. Correct. Your thing in the music department, we can see it on the screen. You know, the music that you have created. क्या पसंद आ रहा है एक्टिंग जो आप कर रहे हैं कि or you want to give only for the music thing? ये just हो गया? एक्टिंग मैंने जो भी की है उसका पूरा क्रेडिट इस इंसान को जाता है. और मुझे एक्टिंग से ज़्यादा म्यूज़िक पसंद है, ये क्लियर है, और मैं आगे म्यूज़िक ही करना चाहता हूँ. ओके या करिश्मा जी, आपसे भी एक सवाल है, एक आखिरी सवाल मेरा, प्लीज़ आप कैसा है एक्सपीरियंस वेल वर्किंग विद योर लीड एक्टर्स अलॉन्ग विद यू नो डायरेक्टर? Yes, as I said, ये टीम मेरी फेवरेट टीम है. सो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यू नेवर नो कि सेट पर क्या क्या सिचुएशंस हमें आ सकती है. राइट द डे व्हेन वी रीच्ड, weather conditions over there were challenging, as well as the schedules kept changing. So obviously there were challenges, but the sweetest part is the team was inspiring and motivating me to perform, that yes, you can do it, and that's what I really like about them. So that's what the main and best part was. Thank you. Do we have any more questions? हाय, दिस इज रवि गुप्ता यार. मेरा सवाल है फिल्म के प्रोड्यूसर से. सर, आजकल देखा जा रहा है कि जो ऑडियंस का जो रुझान है किसी भी फिल्म को लेकर काफ़ी सेलेक्टिव होता जा रहा है. किसी फिल्म का अगर ज़्यादा बज़ होता है तो उस फिल्म की तरफ लोग ज़्यादा जुड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ कई ऐसे फिल्में होती हैं अच्छे रिव्यूज़ के बावजूद उस फिल्म की तरफ नहीं जुड़ पाते हैं. या तो सडन बूम आ जाता है या फिर
सस्टेन्ड रहता है, ठीक है। तो ऐसे में आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अपनी फिल्म को किस हिसाब से प्लान कर रहे हैं, अगर रिलीज की बात की जाए? इसका जवाब दिया जाए तो पहली बात तो मैं मतलब कंटेंट बहुत अच्छा है। कंटेंट अच्छा होने के कारण लोगों को पसंद आएगा, बस एक ही बात। कंटेंट है उसके दम पर आप रिलाई कर रहे हैं? डेफिनेटली पसंद आएगा लोगों को। सर एज अ प्रोड्यूसर आपके ऊपर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मेरे कलीग ने भी पूछा था कि कोई नॉन कास्ट नहीं है लेकिन स्टोरी बहुत अच्छा है, तो एज अ प्रोड्यूसर जब आपने इस कहानी के बारे में सुना था, क्या थॉट प्रोसेस था और आपने इस प्रोजेक्ट को बैक करने का क्यों सोचा? उसका जवाब आपने दे दिया। जैसा मैंने बोला है कि जब सोचा मैंने करने का, क्योंकि कंटेंट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया, और उसके मुताबिक जो कंटेंट अच्छा होने के कारण मैंने उस पर पैसा लगाया, दैट्स इट। सर, आपने पैसे लगाने की बात की, आप कैपिटल मार्केट से भी जुड़े हैं, तो वहाँ पर हम अक्सर सुना करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन। यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर किस तरह का आप रिस्क देखते हैं और रिवॉर्ड कैसे देखते हैं? उससे ज़्यादा रिस्क यहाँ पे है। जब आप एंटर करते हो तब समझ में आता है, उससे ज़्यादा रिस्क है, लेकिन जहाँ रिस्क है वही रिटर्न है। ओके, थैंक यू सर। Hello, congratulations to everybody who are joined with the producer, director and star cast of this film. Extremely loved the concept, the story, the performance and of course music as well. It's very soothing. Lovely it is. वैभव जी, मेरा सवाल आपसे है। हम सभी ने, जैसे कि हमें एंकर से पता चला कि फिल्म को कई सारे अवार्ड मिले, और इस बात की खबर तो पहले से लगी रही थी कि फिल्म ने ये अवार्ड पाए, तो इंटरनेशनल अवार्ड के लिए फिल्म की एंट्री भेजने के लिए किस तरह के हर्डल्स आए? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि आमिर खान जैसे दिग्गज एक्टर और प्रोड्यूसर की फिल्म लगान के बाद दूसरी फिल्म लापता लेडीज़ भी ऑस्कर के लिए गई, तो आपका क्या अनुभव रहा जब ये फिल्म आपने इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए भेजी और वहाँ पर भी नवाजी गई? सो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ऑन दिस? ऑस्कर वगैरह अभी हमने ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑस्कर की फिल्म नहीं है, ये कमर्शियल फिल्म है, तो वहाँ शायद ये हर्डल आ सकता था। लेकिन बाकी सब फेस्टिवल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। जिस फेस्टिवल का रेपुटेशन देखकर, कितने सालों से चल रहा है वो देखकर वहाँ पर हमने एंट्री ली और उनको पसंद आई, उन्होंने अवार्ड्स दिए, हुआ। मेजर ऑब्स्टेकल्स ऐसा कुछ हुआ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। इट वॉज स्मूथली डन? यस। ओके। प्रोड्यूसर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वैभव जी की ये एज सच पहली फिल्म है, मेजर फिल्म, तो आपने कंटेंट के बारे में कहा, और ऐसी क्या बात है, यूएसपी हम कहे, कि जिस वजह से आपको लगा कि इस फिल्म को बनना चाहिए, और आगे आपके क्या प्लान्स है? आगे क्या प्लान मैं पहले बताऊंगा कि अगर दूसरा प्रपोजल भी वैभव ने दिया है, मतलब ये होने के बाद में दूसरा देखेंगे। दैट्स इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैभव जी, आपका ये सिनेरियो जैसे डायरेक्शन किया है आपने, बहुत अच्छा लोकेशन लिया है। कितने दिन का शेड्यूल था और कैसे लोकेशन पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया? कैसे गया पिक्चर आपका स्मूथली? हिमाचल में लगभग 30 डेज थे हम। 32 डेज थे। वहाँ पर जैसे करिश्मा ने बताया कि हम सोच कर गए थे कि अप्रैल में शूट करेंगे तो बारिश नहीं होगी, ठंड कम होगी, हम काम कर पाएंगे। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बारिश हो रही थी, आजू बाजू में बर्फ़ था, तो पहला चैलेंज यही सामने दिखा। बहुत हर्डल्स है, और ऐसी जगह पर हम थे कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अगर गायब हो जाती है तो 1-2 दिन वहाँ पर कोई आता भी नहीं देखने के लिए, ऐसी जगह पर। तो ये सब चैलेंजेस आए कि बिजली चली गई, एक दिन पूरा दिन आई ही नहीं, फिर बैटरी कैसे चार्ज करें वगैरह। तो जो कुछ मटेरियल, मतलब जैसे कैमरा की बैटरीज तो थी बैकअप, तो उस पर काम क्या हो सकता है आउटडोर का, समझो ठीक है, लाइट्स नहीं है तो चलता है, रिफ्लेक्टर से होता है, तो उस तरीके से आगे बढ़ते गए और जो शेड्यूल हमने प्लान किया था उसमें हो गया।
वैभव जी, आपसे सवाल यही रहेगा मेरा। ट्रेलर जैसे हमने देखा और ट्रेलर में काफ़ी ऐसी चीज़ें लग रही जैसे कि एक प्रॉपर एक पैरेलल सिनेमा टाइप फिल्म थोड़ा फील आ रहा है और एक मिस्ट्री भी दिखाई दे रही है जो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, किसी फिल्म मेकर से आपने इंस्पिरेशन लिया, किसी फिल्म से इंस्पिरेशन ली, या डायरेक्ट जाके आपने वहाँ पर शूट किया, जैसा आपको लगा वैसा आपने शूट किया? क्योंकि ट्रेलर देख कर ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा कोई प्रोडक्शन हाउस है उसने ये फिल्म ऐसा बनाया है, क्योंकि लोकेशन भी बहुत अच्छी लग रही है। तो वो पैशनेट आपका कहाँ से है और डायरेक्शन क्या किसी डायरेक्टर को आपने फॉलो किया, उसकी फिल्मों को फॉलो किया, अगर बता सके आप? नहीं, इंस्पिरेशन ऐसा किसी से लिया ऐसा नहीं बोल सकते। मेरा फिल्म देखना भी बहुत कम होता है एक्चुअली। मेरा मानना ये है कि अपने अंदर से क्या आता है वो सुनना चाहिए, वो देखना चाहिए। वो दिमाग से सोचना नहीं चाहिए कि वो अच्छा है बुरा है, लोगों को अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा। जो मेरे अंदर से आता है कि ये मुझे बताना चाहिए तो वो बताना चाहिए, बस इतना ही आया। और जो हम कर रहे हैं वो अच्छा ही करना चाहिए। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो वो नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इसलिए ये फिल्म इस तरीके से बनी जैसे आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया। और जब हमने लोकेशन देखा तो हम ही मतलब आंखों से पानी आ रहा था, अगर इतना स्वर्ग अपने भारत में है ये कभी देखा भी नहीं था। हिमाचल में भी लोग बहुत सारे जाते हैं, कुल्लू मनाली शिमला, लेकिन ये जो लोकेशन है बहुत ही अलग है। यहाँ पर मंडी के लोग भी वहाँ पर नहीं जाते, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो कुल्लू के लोग भी वहाँ तक नहीं गए। वो लोकेशन हमें मिला, हमारा सिनेमेटोग्राफर पहले वहाँ गया था, उसने बताया कि लोकेशन बहुत अच्छा है। तो फिर हमने देखा तो हमें भी बहुत पसंद आया और फिल्म में अच्छा दिख रहा है। आपकी एक बात भी थी जैसे आपने इसमें कैरेक्टर जो होता है वो, ये फिल्म का जो कैरेक्टर है वो लोकेशन है, वो भी एक लोकेशन है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज लोकेशन आल्सो मैटर्स टू प्रेजेंट द स्टोरी इन अ मच मोर मीनिंगफुल वे। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू सर फॉर दैट। थैंक यू सो मच। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, वैभव ने जब मुझे स्क्रिप्ट पढ़ाई तो देखा, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला जाके देख के आते। हम रेकी करने गए और देखने के बाद और उसमें चेंजेस आए। ही फॉरगेट टू से दैट उसमें और चेंजेस आए, क्योंकि जो सोचा था वो तो है, उससे भी और कुछ अच्छा दिखा सकते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल। लेकिन वैभव जी देखा जाए तो डीओपी का काम बहुत अच्छा है। सही बात है, बहुत क्योंकि अच्छा मेरा तो कहना है कि मेरे पहले उसने फिल्म देखी थी, मतलब मन में वो उसने पहले लोकेशन देखा था, फिर मुझे बताया कि ऐसा ऐसा लोकेशन है, वहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता है। तो फिर स्टोरी लिखी गई लोकेशन बिना देखे, लोकेशन को कंसिडर करके। फिर बाद में जैसे सर ने कहा कि हमने रेकी की जाकर वहाँ देखा तो एक 2-5% वहाँ पर चेंजेस आए और अच्छी फिल्म बनती गई लोकेशन के हिसाब से। स्टेज पे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स भी हैं, तो मैं एक सवाल मैडम आपसे जानना चाहूँगा। माइक दे दें प्लीज उनको। मैम सेंटर में आइए, सेंटर में आइए, सेंटर में लाइट अच्छा है। अच्छा मैडम, जब आपको बताया गया कि इस तरह की फिल्म करनी है तो डायरेक्टर साहब के तरफ से क्या क्या टिप्स दी गई थी कि किस तरह से कॉस्ट्यूम्स होगा? फिल्म हिमाचल की है तो हिमाचल की ही लुक चाहिए थी, क्या क्या कुछ तय था? कैरेक्टर्स को किस तरह के कॉस्ट्यूम्स देने हैं, उसके बारे में कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे आप? हाँ, ज़रूर बताया था।